सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा. व्हाट डू यू थिंक? मुझे एक ओपिनियन जानना था बेसिकली. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कल किसी ने कहा कि ये सब तो हमने हमारे हमारे रिलीजन में या फिर हमारे लीडर्स ने या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है नेहा? नहीं, अभी ठीक है. ओके. सो किसी ने मुझसे कल कहा कि ये जो आप करा रहे हो ये सब तो ऑलरेडी हमने हमारे रिलीजन में या हमारे लीडर्स से हम हमेशा से सुनते आए हैं, यही सब हमारे सिखाते हैं, तो हम क्यों इसको ज्वाइन करें, क्यों कंटिन्यू रखें और क्यों इस चीज को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें. तो कैन समवन टेल मी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं नहीं कह रही कि वो बिल्कुल भी गलत हैं और वो बिल्कुल सही हैं, बट मेरा आंसर क्या होना चाहिए था उनको? कैन समवन प्लीज volunteer and answer me? Kritika, you remain silent. I like to answer it. Tell me. Okay. Religion सबका पर्सपेक्टिव अलग रहता है. रिलीजन का हर रिलीजन में ये रहता है कि मतलब you have done something that's is happening, but I lost my faith in religion when my 6-month-old son diagrammed with so many things, brain damage, seizure and everything. Means they even doctors told me he's blind, he cannot walk, means why you're wasting money on him. Means my relative said, why you are wasting money on sending him to some institute. But I had the faith. The doctor gave me the law of attraction book. She gifted me. I read the book and she told me, you have to have the faith. He will do anything. And after that, for 1 year, he was not able to do anything. He cannot sit, he cannot hold his neck. Earlier he was doing. But religion didn't help me. I went to every temple. Someone, even till now, someone said, go to this temple, it will help. Go to this dargah, it will help. But nothing helped. Nothing like magic happened. Then I started that reading book that gifted by the doctor. Even she was so attached to my son that when her parent went to, means I'm Hindu by nature, by born, by birth, her parents went to Makkah, Medina, they sent tabi, water, everything to us from there. Okay, I did everything, but main magic happened when he started sitting. I had faith on law of attraction. I left my job because of my son, and financially it's was struggle. I was earning very good money, more than my husband. But all this struggle came. But after reading that book, something happened. My husband got transferred to Delhi, so he had to keep me in a small place, Rawat Bhatta, with my parents. I think most of you have not heard the place Rawat Bhatta. And one government doctor treat my son 2 hours, and because I don't have a home responsibility, I was doing therapy for 7 hours. So 9 hours per day on child, and within 1 week he started sitting. Within 6 months he started, 6 months or 4 months. Doctor give me a 3-month time. So within 3 months he was walking with support. And obviously he is not blind. When he was 2-year old, we did the surgery and he can see anything, he can read. Although at this time I'm expecting he will get to speak. Means right now he cannot speak, but I'm expecting that this time but at that time religion, everything one said, this is your karma, that's why he is this. This is your karma, this is this. But in magic, no one says that karma will affect my son. It's my thinking that I can help. If I leave it to karma, I am doing nothing. I will not spend money on therapy. I will not spend money on doctors. I will go to temple. I met a baby who was 8-year-old. Her parents were engineer and they were not doing therapy. Instead, they are taking the boy to 1 month to a temple and sleeping on temple floor. And he has no improvement, no improvement. I took 6 months to convince the parent to do the therapy. After 6 months, he started walking. But again, I lost touch with them, and again they stopped the therapy. And now again, vegetable state, their son is. So wonderful, Sarika. This is like truly inspiring. This is superb. This is like I mean, wow. I really got goosebumps hearing your story. This is like wow, superb.
एंड आपका जो ये बिलीफ रहा है, ये आप बिलीफ को थोड़ा प्रेजेंट टेंस में ले आओ इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द फ्यूचर टेंस. जैसे मैंने कल एक अपना वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेजा था, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. अभी आप आगे जब पढ़ोगे, स्पेशली हेल्थ वाले जब चैप्टर्स पढ़ोगे इसमें, आई थिंक इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर योर सन. एंड quick blessing from all of the group members for your son. He's healing absolutely. He's fit, fine, and healthy. We all pray for your son. Okay. But हाँ, मेरा क्वेश्चन जो था उसका आंसर मैं खुद ही करती हूँ अब. जिसने मुझे ऐसे कहा, मैंने उनको ये आंसर किया कि आई अग्री कि XYZ पर्सन या XYZ रिलीजन में या किसी भी रिलीजन में ये चीज सिखाई जाती है, ग्रैटिट्यूड या हमारे बिलीफ सिस्टम के बारे में ये सब सिखाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन इम्प्लीमेंट करते हो क्या आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो क्या उस चीज को? नहीं ना. आप उसका आंसर करो, यस और नो. आप लोग बताइए. इसमें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? हम सिर्फ सुनते हैं, उस ज्ञान को सुनते रहते हैं, उनसे सुनते रहते हैं. हमें भी पता है ग्रैटिट्यूड हमें देना चाहिए जो हमें लाइफ में मिला है, हमें पहले से पता था ये बात, बट हम इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाते हैं. अक्षता, यस, समटाइम्स यस वी डू. लेकिन वो कब होता है? कल आपने रोंडा की एक बात सुनी थी कि हम ग्रेटफुल तब हो जाते हैं जब हमें कोई गिफ्ट दे देता है, हमारे लिए कुछ स्पेशल कर देता है, हमारे लिए कुछ हमारी किसी चीज में हेल्प कर देता है. दैट्स इट. नो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिलीजियस नेहा, बट कभी कभी होता है, इनफैक्ट हम किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन की कहीं वीडियो देख लिया हमने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, हमें लगता है ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये. लेकिन उसके बाद क्या? आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ना. मेन बात इम्प्लीमेंटेशन है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसीलिए ये बुक में मुझे बहुत पावरफुल लगी ये बुक, क्योंकि इस बुक में आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा. आपके पास एवरी चैप्टर के बाद, मैंने बताया भी था पहले, कि असाइनमेंट्स हैं, बकायदा आपको वो असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, वो इम्प्लीमेंटेशंस करने पड़ेंगे, सो दैट आप उन मैजिक्स को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकें. दिस इज द डिफरेंस. कोई आपसे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, हमने पहले भी ये सब पढ़ा हुआ है, कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उनसे यही क्रॉस क्वेश्चन करना, आपने इम्प्लीमेंट किया था क्या उसे? सो दैट्स माय पॉइंट. सो आप, कृतिका, प्लीज स्टार्ट शेयरिंग द PDF. I mean, start sharing your I'm doing that. Meanwhile, can you ask anyone to volunteer to read? Who's reading today? Can someone volunteer? Upasana, can you volunteer? Just unmute yourself, please, if it's okay with you. Neha, if you can read. Sure. Neha, unmute yourself. You have? I can't hear you, Neha. You have unmuted yourself, but we still can't hear you. Page number 22 of the PDF and page number 15 of the physical book. No, Neha, we can't hear you. चलो हम नेहा का बाद में देखते हैं फिर. कृतिका, एक बार सबको म्यूट कर दो and you start reading then. Okay. एक बार म्यूट कर देना लेकिन सबको. I think सब लोग म्यूट हैं. I'll just check अभी. Am I audible? Yes, yes, absolutely. Okay. Should I start? Yes, please. Yeah. Bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप
कहाँ से हैं आप, आपके करंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, करंट सिचुएशंस क्या हैं, आपका जो ग्रैटिट्यूड का जो मैजिक है वो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be of no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous. And I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. सो रोंडा के पास बहुत सारे लोग लिखते हैं, उनको लेटर्स लिखते हैं, ईमेल्स करते हैं, जहां ऐसी ऐसी सिचुएशंस वो अपनी बताते हैं, जैसे अभी सारिका ने भी शेयर करी इनफैक्ट, जिसमें सिर्फ उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से बहुत मिरेक्युलस रिजल्ट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ पर्सपेक्टिव से हो, जहां पर कोई होप नहीं थी उनकी हेल्थ को ठीक करने की, या उनकी शादी जो टूटने की वर्ज पे थी वो ठीक रही, वो बेटर हो गई, या उनके कोई और रिलेशनशिप जो एकदम मतलब बहुत मिराक्युलसली ट्रांसफॉर्म हो गए, या जो लोग बहुत गरीबी में थे उससे वो लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी में आ गए। तो इस तरीके से जो लोग डिप्रेशन में थे वो लोग एकदम हैप्पी और जॉयफुल लाइफ में आ गए। ये सब उसने उन लेटर्स में उनके एक्सपीरियंसेस देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase successes, and bring you about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to do, be, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. ओके, सो ग्रैटिट्यूड जो कृतज्ञता है वो आपकी लाइफ में मैजिकली आपके रिलेशनशिप्स को हील कर सकती है, अच्छा बना सकती है और मीनिंगफुल बना सकती है, किसी भी स्टेट में हो जाए से। वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक स्टेट से अच्छी स्टेट में आएंगे, बहुत ही खराब स्टेट से भी अच्छी स्टेट में आएंगे अगर आप ग्रेटिट्यूड को मैजिकली अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं। तो उस तरीके से ही आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्थ, आपकी आपकी इनर हैप्पीनेस, सब कुछ इंक्रीज होगी, सब कुछ, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव पर्सनली फेल्ट एज वेल। हम अगर सिर्फ ऑथर की बात भी नहीं करें तो सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ आई मीन लैक्स ऑफ पीपल हैव फेल्ट इट। So it will really work magically into your career, into your relationships, health, और whatever जो भी आप बनना चाहते हैं या जो भी आप पाना चाहते हैं लाइफ में, मटेरियल, नॉन मटेरियल थिंग्स, सब कुछ आपको इसकी हेल्प से मिल सकता है। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than you were when you were a child. जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, जब आप कृतज्ञता को प्रैक्टिस करते हैं डेली लाइफ में, आपको समझ में आने लगेगा कि क्यों लाइफ में, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में कुछ चीजें गलत हुई हैं आपके साथ में, या कुछ चीजें आपकी लाइफ में से मिसिंग रही हैं, क्यों ऐसा हुआ, आपको खुद अपने आप रियलाइज होने लग जाएगा। और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ बना लेंगे, अपनी लाइफ का एक पार्ट नहीं अपनी लाइफ बना लेंगे, तो एवरी मॉर्निंग आप इतने एक्साइटेड रहेंगे सुबह उठने के लिए, और आपको अपनी जिंदगी से एकदम प्यार हो जाएगा कि ये वाओ व्हाट अ लाइफ, एंड सब कुछ आपको आपकी लाइफ में इतना एफर्टलेस लगेगा, जहाँ पे आपको एकदम हैप्पी, आप एकदम लाइट फील करेंगे। एंड
चैलेंजेस आएंगे, रोंडा कह रही है कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस आना या फिर ऑब्स्टेकल्स आना बंद हो जाएंगे, डेफिनेटली वो आएंगे, लेकिन मैजिक क्या होगा, मैजिक ये होगा कि वो आपको उनको फेस करना, उनको ओवरकम करना आ जाएगा, ठीक है, एंड उनसे आप क्या सीख सकते हो वो आपको आ जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वही चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आपको और बेटर तरीके से आपको वो सिखा के जाएगा, आप उनको ओवरकम कर सकते हो। हर दिन एक मैजिकल डे होगा, हर दिन आपको लगेगा कि आज मेरे साथ ये इतने मैजिक्स हुए हैं, अगर आप मैजिक को अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेते हो तो। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. सो आपने इससे पहले कभी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर किया होगा तो आपको अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने बारे में आज इस सेशन के बारे में सोच के देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं ऑलरेडी, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेशनशिप हो, आपके स्पाउस से आपका रिलेशनशिप हो, आपके बच्चों से आपका रिलेशनशिप हो, या आपका फाइनेंसेस हो, आपका करियर हो, कुछ भी, आपकी पर्सनल हेल्थ हो, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा डीप जाके सोचेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपने कहीं ना कहीं उस चीज के लिए अपनी लाइफ में बहुत थैंकफुल रहे हैं। आपकी अगर हेल्थ बहुत अच्छी रही है ऑल थ्रू आउट योर लाइफ तो आप रियलाइज करेंगे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत थैंकफुल रही हूँ। तभी एज अ रिजल्ट मैजिक क्या होता है, मैजिक ग्रेटिट्यूड का वो होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट होता है, आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट मिलता है वो, तो आप उसके लिए पास्ट में थैंकफुल रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट तक भी आपकी हेल्थ अच्छी है। सो अगर प्रेजेंट में आप उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो फ्यूचर तक में भी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। डू आई मेक सेंस हियर? आप लोगों को समझ आ रही है ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट ये जो इन्होंने अभी लाइन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको समझ रहे हैं तो। नेक्स्ट प्लीज। It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It is the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. सो इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट, ये बहुत सीधी सी बात है दैट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल अगर आप नहीं है तो आपको रिसीव, अगर आप नहीं दे रहे हैं किसी को, थैंकफुल नहीं हो रहे हैं तो आपको भी रिटर्न में वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में से मैजिक को स्टॉप कर देते हैं अगर आप कृतज्ञ हो जाते हैं तो। सो अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं होते हैं तो आप अपनी लाइफ में से बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स, खुशियां, मनी और भी जो भी अबंडेंस आपको आपकी लाइफ में, जॉब में, करियर में, बिजनेस में चाहिए, उनके फ्लो पे आप स्टॉपेज लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, या उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन दे देते हैं बीच में, आप उसको स्टॉप कर देते हैं। तो अगर आप देंगे तो आप पाएंगे। क्या देंगे? आपको देना है ग्रेटिट्यूड, आपको मिलेगा वो जो आपको चाहिए। The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she will be taken up from him or her. सो बॉटम लाइन क्या है इस पूरे अभी तक के चैप्टर की, कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं, अगर आप थैंकफुल नहीं हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, सो आप आप अपनी लाइफ को या आपकी लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस को या कुछ पर्टिकुलर चीजों को, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, अगर उनको ग्रांटेड ले रहे हैं तो लाइफ में आपको भी इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली
आप भी टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिए जाएंगे, आप भी ग्रांटेड ही लिए जाएंगे। आप इस बात को मान के चलिए दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा भी। आपको ये बात हमने इस बुक में पहले भी पढ़ी है, जो ग्रैटिट्यूड नहीं दे सकता है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास ऑलरेडी है। Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. So, the author says that हो सकता है अपनी लाइफ में आप बहुत ग्रेटफुल रहे हो एट टाइम्स, यू नो, लेकिन वो बहुत पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं जहां पर आप रियली में ग्रेटफुल फील करते हो। एंड यू नो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी ने आपका कुछ यू नो आपको लोन दे दिया, या आपको आपकी हेल्थ में कुछ हेल्प कर दी किसी ने, तो आप ठीक है आपने उसको थैंक यू बोल दिया, दैट्स इट। बट आपको उसमें घुसना है, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐसे इनकलकेट करना है एज इफ इट्स द ओनली वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। तभी आपके करंट सिचुएशंस, करंट सर्कमस्टांसेस एकदम मैग्निफिसेंट हो जाएंगे, एकदम बहुत ही शानदार हो जाएंगे। दैट इज व्हाट द यू नो ऑथर इज ट्राइंग टू से। The magic formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. एग्जैक्टली जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये वही है कि ठीक है हमारे पास ज्ञान है, सब कुछ है, ज्ञान एक खजाना है जो हम कहीं से भी लूट सकते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, स्पेशली अभी यू नो इंटरनेट टाइम्स में तो बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बहुत अच्छा खजाना अवेलेबल है। बट मेन बात है इम्प्लीमेंटेशन, उसको प्रैक्टिस करना, वही यू नो मेन चीज है। Ancient myths and legends say that to bring forth a magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works is in the same way. And first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. जो पुराने ग्रंथ और यू नो लीडर्स रहे हैं, लेजेंड्स रहे हैं, उन्होंने भी बताया है दैट मैजिक वर्ड्स यूज करिए। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे स्कूल्स में भी ये चीज सिखाया जाता है, 3 मैजिक वर्ड्स हमारे बच्चों के स्कूल्स में भी सिखाया जाता है कि मैजिक वर्ड क्या है। मैजिक वर्ड थैंक यू है। थैंक यू से आप अपनी लाइफ में इतना मैजिक ला सकते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप ऑथर कह रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में ये 2 वर्ड्स थैंक यू। अगर आप इसको अपनी लाइफ में मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो शुरू में आपको डेलिबरेटली कॉन्शियस एफर्ट के साथ में आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी ये बोलने की, जहां आपको शायद आपके दिल से नहीं निकल पाए वो थैंक यू, लेकिन आप अगर एफर्ट डाल के भी उसको शुरू में बोलना स्टार्ट करेंगे हर बात के लिए जिसमें आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, तो लाइफ आपकी बहुत मैजिकल होती जाएगी और वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी और वो एक ब्रिज बन जाएगा। जहां पर आप अभी हैं वहां से आपकी सपनों की दुनिया तक के लिए एक ब्रिज बन जाएगा, आपके पास एक पाथ मिल जाएगा आपको। The magic formula. First, deliberately think and say the magic words thank you. Second, the more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. Third, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. सिंपल सी बात है, एक बहुत मैजिकल फॉर्मूला है जो रोंडा ने बताया है कि आप डेलिबरेटली आप एफर्ट डालिए किसी चीज के बारे में, सोचिए और उसके बारे में मैजिक वर्ड्स बोलिए। ठीक है, आप जितना आप और उसके बारे में डेलिबरेटली सोचेंगे, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर और उसमें एफर्ट डाल के सोचेंगे, तो आपके मुंह से थैंक यू निकलेगा और आपको ग्रैटिट्यूड रियल में फील करने की कोशिश करना है कि आप उसके लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हैं। जितना ज्यादा आप उसके बारे में ग्रैटिट्यूड के सोचेंगे और फील करेंगे उतना अबंडेंस आपको मिलेगा, उतना ही आपको आपकी लाइफ में भरपूर और मिलेगा जो आप चाहते हैं।
Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. सो ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, एक भावना है, उसका जो एक अल्टीमेट जो एम, जो उसका हमारा जो एक अल्टीमेट एम होता है कि शुरू में स्पेशली जहां हम उसको डेलिबरेटली ज्यादा से ज्यादा उसको फील करने की कोशिश करें, उतना ज्यादा उसकी फोर्स, उस पावर की फोर्स हमारी लाइफ में मैजिक लेकर आएगी. सो आपको आज से ही इनफैक्ट ये अपनी लाइफ में स्टार्ट करने की कोशिश करनी है. जैसा कि न्यूटन का लॉ भी कहता है, न्यूटन का 1 for 1 लॉ भी कहता है, जितना आप दोगे आपको उतना ही मिलेगा. दैट मीन्स अगर आप अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को इंक्रीज करोगे तो आपकी लाइफ में भी उतने ही मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे, और उतनी ही तेजी से आएंगे जितनी तेजी से आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को बढ़ाओगे. जितनी सिंसियर फीलिंग्स होगी, जितनी सच्ची फीलिंग्स आपके मन में होंगी, उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude in your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. एब्सोल्युटली. जैसे ही आप थोड़ा सा भी इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें मुझे कुछ अलग से कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, ये बस पार्ट ऑफ मेरी लाइफ हो चुकी है. लेकिन जब मेन बात, मजा तब आएगा जब आप इसके इसके रिजल्ट्स देखने लग जाएंगे, और इतनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं कि आप अभी बात कर रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट ही हो सकता है आपको रिजल्ट मिल जाए. तो वो डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से आप उस चीज के लिए थैंकफुल हैं, कितनी शिद्दत से आपको वो चीज चाहिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं. उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे. आपने सोचा भी नहीं होगा, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. सिंपल है, बहुत सीधी सी बात है, दैट अगर आप ग्रैटिट्यूड इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक भी इतना ही होगा. अगर आप ग्रैटिट्यूड को एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, भरपूर करेंगे, तो उतना ही ड्रामेटिकली, आपको अंदाजा भी नहीं है किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे. अच्छे चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस जो आप चाहते हैं. A magical book. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. जॉन एफ कैनेडी कहते हैं दैट जब हम ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, तब हमें ये नहीं, वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट द हाईएस्ट अप्रिसिएशन इज नॉट अ. ही इज सेइंग दैट सिर्फ बोलना काफी नहीं है, उस चीज को फील करना, उस चीज को जीना जरूरी है. दैट इज व्हाट जॉन एफ कैनेडी इज सेइंग. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. इस बुक में 28 चैप्टर्स हैं, जो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद वो स्टार्ट होंगे वो चैप्टर्स. और हर एक चैप्टर में एक आपको एक्टिविटी, एक असाइनमेंट दिया गया है, जो बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है. बहुत सोच समझ के रोंडा ने उनको डिजाइन किया है, जहां पर वहां अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को वो कवर करेंगी. चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी कोई छोटी सी डिजायर हो, या आपके कोई बड़ा सा कोई सपना हो, उन सबको पूरी करने के लिए एक एक प्रैक्टिस डिजाइन करी हुई, एक एक असाइनमेंट आपको दिया हुआ है. आप
ये भी लर्न करने लग जाएंगे कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं. You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. So आप इस बात को ज्ञान आपको जो भी इस बुक में ज्ञान मिलेगा उससे आप एकदम आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा. आप एकदम उसकी तरफ आकर्षित रहेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुनने में. लेकिन अगेन वो ज्ञान तभी यूजफुल है जब आप उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वो ज्ञान वो जो आप सीखेंगे, जो आगे इस बुक में सीखेंगे, तभी वो उसका कोई मतलब है उस चीज को. वरना वो आपके हाथों से कब निकल के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप थोड़े दिनों में उसको भूल जाएंगे. सो ये आपके साथ नहीं हो ये चीज, इसके लिए इसमें जो 28 डेज की जो आपको सिखाया जाएगा, उसमें जो प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाएंगी, उनको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करिएगा. एवरीडे लाइफ में आप उसको यूज करिएगा, तभी जिंदगी भर आप उसको यूज करेंगे तो जिंदगी भर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे. सो दैट अगर 28 डेज तक आपने इसको रिलीजियसली फॉलो कर लिया, 28 डेज अगर आपने इसको ठीक से फॉलो कर लिया, अच्छे से जो इसमें असाइनमेंट्स दिए हैं उनको कर लिया, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा. अगर वहां फिट हो गया तो फिर कोई नहीं निकाल सकता है आपके माइंड से, तो वो परमानेंटली आपकी लाइफ में फिट हो गया. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic takes place in your life and fast. सो जो प्रैक्टिसेस हैं वो 28 डेज लगातार आपको करनी है. हर दिन की एक प्रैक्टिस है जो आपको उसी दिन फिनिश करने की कोशिश करनी है. और अगर आप वो करते हैं, आप अपनी लाइफ में इस प्रैक्टिसेस को लेके सिंसियर रहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ का हैबिट बन जाएगा, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, एक नया तरीका बन जाएगा जीने के लिए. एंड अगर आप इसमें बहुत एफर्ट थोड़ा अगर डाल के और कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपकी लाइफ में मैजिक होगा और बहुत जल्दी होगा. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. सो हर जो मैजिकल प्रैक्टिस है वो एक तरीके से खजाना है उन सीक्रेट टीचिंग्स का, उन बातों का जो शायद हमें पता तो है, लेकिन उनको कैसे उस नॉलेज को और हम एक्सपैंड करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके बताएगी इसमें रोंडा आगे. एंड हर प्रैक्टिस से हम हमारी लाइफ के बारे में, क्या लाइफ हमारी कैसे वर्क करती है, जिस एंगल से हमने उस लाइफ को सोच के नहीं देखा, उस एंगल को भी वो टच कराएगी और आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि कैसे हमारी लाइफ वर्क करती है और कैसे हम हमारी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. So, इसके जो फर्स्ट 12 चैप्टर्स हैं बुक के, उसमें वो बेसिकली आपको फील कराएगी कि आप कृतज्ञ होइए उन चीजों के लिए जो आपके साथ पास्ट में हुई हैं या प्रेजेंट में भी हैं. उन चीजों के लिए पूरे 12 चैप्टर्स उसने डेडिकेट किए हैं. उन्हीं पर्टिकुलर चीजों के लिए वो ही आपको आगे आगे की तरफ लेके जा सकती है. आप आगे का रास्ता आपके लिए तभी क्लियर होगा जब आप पास्ट में या प्रेजेंट में जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे, तभी आप जाके फ्यूचर में भी फ्यूचर में आपको क्या चाहिए उसके लिए आपकी लाइफ इजी बनाएगा.
The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true, and you will see the circumstances of your life magically change. उसके आगे के जो 12 चैप्टर्स के बाद में जो फिर 10 चैप्टर्स आएंगे, वो आपकी फ्यूचर जो आप चाहते हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको मैजिकली आप कैसे उन ड्रीम्स को सच्चाई में बदल सकते हैं, किस तरीके से आप खुद देखने लग जाएंगे जब तक आप ये 12 प्रैक्टिसेस जब करेंगे। और जब आप वो 13th चैप्टर पे आएंगे, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपने क्या अचीव कर लिया है ऑलरेडी, किस तरीके से आप जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। The last 6 practices takes you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people dissolve problems and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. और जो लास्ट के 6 चैप्टर्स हैं इस बुक में, वो आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे, जहां पर ग्रैटिट्यूड आपके कण कण में बस चुका होगा, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में आ चुका होगा, अगर आप इसको ठीक से फॉलो कर रहे होंगे ऑल थ्रू आउट। तो आप लर्न कर लेंगे कि किस तरीके से आपके हाथ में जो ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर आ चुकी है, उससे आप ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम्स, उनकी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को या उनकी किसी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को, उनकी लाइफ को, उनको भी आप इम्प्रूव करा सकते हैं। अपने किसी नोन के, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के, उनको भी आप इम्प्रूव करा सकते हैं। You don't need to clear your calendar because each of the practices has specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. So, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इसमें कि ग्रैटिट्यूड बहुत पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब इजी टू कैरी है, हम इसको कभी भी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ। सो आपको इसके लिए अपना कैलेंडर अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, अपना डे को अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो असाइनमेंट्स है, वो इतने इजी हैं कि आप उसको अपनी एवरीडे लाइफ में भी अगर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो बहुत इजीली आप उनको कर सकते हैं। चाहे वो वीकडेज हो या वीकेंड्स हो, आप कुछ भी हो, आप छुट्टी मोड पे हो, आप कहीं वेकेशन पे हो, या खैर अभी तो वेकेशन का कोई बात नहीं है, बट कुछ भी हो, अगर अपनी लाइफ में कुछ भी और भी चल रहा है तो उनके साथ भी आप इनको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस बहुत इजीली कर सकते हैं। If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the magic practices again from there. So this is very important. अगर आपका एक दिन मिस हो रहा है, एक दिन भी अगर आपका मिस हो जाता है, तो आप वो मोमेंटम लूज कर देते हैं। मतलब आप वो जो एक फ्लो चल रहा है उसको आप मिस कर देते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में से वहां पे से मैजिक को कम नहीं करना चाहते हैं और आपने एक दिन मिस कर दिया है, या तो इस सेशन को अटेंड करने में, इस बुक रीडिंग के सेशन में, या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में, जो चैप्टर में असाइनमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर आपने मिस कर दिया है, 3 दिन पहले जाइए, 3 दिन पुरानी एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करिए, तब जाके आप वापस फ्लो में आएंगे। सो दिस इज तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, मैं वापस ट्रैक पे आ गया हूँ या आ गई हूँ। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's magic practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake. And I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to bed, sleep, in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. So, कुछ प्रैक्टिसेस इसमें ऐसी होंगी जो कि स्पेसिफिकली आपकी आंख खुलते ही आपको करनी होंगी, आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको करनी होंगी, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं या दिन भर करनी होगी। सो हर दिन की प्रैक्टिस जो हर चैप्टर के बाद लिखी हुई है, वो आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सबसे पहले अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो मुझे कब करनी है उस दिन की प्रैक्टिस।
हम लोग भी बता देंगे यहाँ पे आपको पहले ही, अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिस हुई जो इनफैक्ट हमारे सेशन से पहले ही अगर आपको करके आनी है तो वो एक सेशन पहले ही हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपको सोने से पहले अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो आप एक बार पढ़ के सोइए कि मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में उठते ही हमें क्या करना है, तो आपके लिए भी इजी रहेगा वो। If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve. And you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week. The only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. रौंडा कह रही है कि अगर आपको पूरी 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस एक साथ नहीं करनी है, एक के बाद नहीं करनी है, तो आप इनको दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। लेकिन उसका उन्होंने ऑलरेडी लास्ट लाइन में लिख दिया है कि उसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आएंगे जितनी जल्दी अगर आप इसको एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। तो वो क्या तरीका है कि आप किसी भी एक मैजिकल प्रैक्टिस जो आपको लगता है कि आपके किसी पर्टिकुलर जहाँ चीज जिसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या जिस पर्टिकुलर चीज को आप चाहते हैं लाइफ में, आप उसी के लिए करना चाहते हैं। लेट्स से आप हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी, तो इसमें जो हेल्थ रिलेटेड चैप्टर्स हैं, आई थिंक 3 चैप्टर्स हैं हेल्थ रिलेटेड, तो आप उन हेल्थ रिलेटेड चैप्टर्स को पिक करिए, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके असाइनमेंट्स को पिक करिए। वो लगातार आप 3 दिन तक भी कर सकते हैं, उसी प्रैक्टिस को एवरीडे 3 दिन तक कर सकते हैं, या फिर पूरा हफ्ता भर भी कर सकते हैं, पूरा 7 दिन भी कर सकते हैं, या फिर एक मैजिकल प्रैक्टिस को वीक में एक बार भी कर सकते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन बात वही है कि आप इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे और इतने लंबे टाइम तक नहीं देख पाएंगे जितना आप इसको एवरीडे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मिलेंगे आपको। There are 2 more pages. Should we do it today or tomorrow? It's 7-8 now. Everybody, are you there for 2 more pages or should we take it tomorrow? Please let us know so that we start Today accordingly. or tomorrow, please write today or tomorrow. Because Neetu has already left. Neha, you can do it. Ankita. ठीक है, fine. People are saying tomorrow. Yeah, so we'll do it tomorrow. Okay, fine. All right, so everyone can unmute yourself and say a bye. Thank you so much for listening to us, and have a wonderful, cash-rich, smiling, positive day, and see you all tomorrow at 6:15 sharp. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you. दिनेश अद्विका सो रही है, सॉरी। Thank you. चीटिंग है तो यार। थैंक यू। तो मैं बात कराऊंगी। कोई नहीं, कल मिलेंगे उससे। Thank you. Okay. Bye. 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 Bye.